These days, business has assumed wider dimension as a result of which numerous problems arise in day-to-day activities and the managers of the enterprise has to solve these problems. इन दिनों बिजनेस पहले की तुलना में ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। इसी कारण दिन प्रतिदिन पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किलें मैनेजर को सामना करनी पड़ रही हैं। इन सभी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए मैनेजर को कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, जिससे मैनेजर बिजनेस को और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ चला सके। A manager need guidelines to grasp with the problem and run the organization efficiently. The principle of management guide the manager. Welcome in our YouTube channel Commerce Fundamental, and the topic of the video is Principles of Management. Please subscribe our channel and hit the bell icon. Principles of Management का पता करने से पहले, जिसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। According to Counts and O'Donnell, management principles are fundamental truth of journal validity which have value in prediction the result of management action. Management principle वो आधारभूत सच हैं जो मैनेजर द्वारा किए गए कार्यों से भविष्य में मिलने वाले रिजल्ट का पहले से पता लगाने में मदद करता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा है और इसका क्या नेचर रहेगा। Universal applicability refer to that truth which is equally applicable in all spheres, both business and non-business. The principle of management are also universal in nature. All business, industrial, unit, etc. and non-business organization like education institution, government office, playground, agriculture farm, army, club and other social organization, in order to achieve their objective, have to apply more or less the same principle. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो होने चाहिए जो हर कहीं पर, चाहे वो एक बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल यूनिट है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, प्लेग्राउंड है, एग्रीकल्चर फार्म है, आर्मी है, क्लब है या एक्सेट्रा, कहीं पर भी वो एक जैसे लागू होने चाहिए। जर्नल गाइडलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेफिनिट like the principle of physics and chemistry. The principle of physics and chemistry are very clear and definite, and these outcome can be predicted. The principle of management, on the other hand, are on the nature of journal guidelines and they cannot be applied strictly. फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके द्वारा एक जैसे रिजल्ट हर बार नहीं आते। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, वो एक ही स्थिति में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। फाउंड बाय प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स faced by professional people. First of all, problem appeared, and then throughout careful research work, solutions are found. Thus, they recognized these solutions found with the help of practice and experience as principle of management. Principle of management साइंस और फिजिक्स की तरह इन
पर भी काफ़ी रिसर्च हुई है और समय समय पर की गई संशोधन द्वारा ही इनको बनाया गया है। ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से लागू किए जा सकते हैं। इन पर अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। Flexibility, the principle of management as they exist today are not in the form of final truth, as and when political, economical and social change take place, new things or problem arise. Old principles are already and new principles are pronounced. There, a principle of management are dynamic in nature and cannot be called state or fixed. जिस प्रकार समय बदलता रहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समय के द्वारा किए गए चेंजेस को देखते हुए इनको भी चेंज किया जा सकता है। जो आज प्रिंसिपल है, हो सकता है कल प्रिंसिपल ना रहें और हो सकता है कि आज के प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ और नए प्रिंसिपल आ जाएं। Mainly behavioral. The principle of management are directly concerned with human behavior. They ensure a better relationship among manpower working at all organization level. Principle of management mainly जो बनाए गए हैं वो एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी करके बनाए गए हैं। एक इंसान के और ज़्यादा अच्छे रिलेशन के लिए इन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिलेशन है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Relationship between cause and effect. The principle of management establish a relationship between cause and effect. They specify what the ultimate outcome will be if in a particular situation work is done in a particular manner. Relationship between cause and effect हमें ये बताता है कि किसी एक निश्चित स्थिति में किस प्रकार से बिहेव किया जाए, उस स्थिति को किस तरह से सुलझाया जाए जिससे हमें एक निश्चित प्रकार के रिजल्ट मिले। Contingent. The principle of management are not fixed or permanent. They are affected by situation or circumstances. Principle of management फिक्स नहीं है, ये स्थितियों के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इतने सारे जो फीचर्स हैं उनके बाद हमें जानना जरूरी हो जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है। कहने का मतलब ये क्यों जरूरी है, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, मीन्स व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। The principle of management are the form of predetermined solution for rapidly occurring problem. Principle of management को इस तरह से बनाया गया है पहले से जो होने वाली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जा सके। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो क्या क्या है देखिए। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। यहाँ इंसाइट का मतलब है कि मैनेजर में कुछ बुद्धि होना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर इन विच should act in various situations so that he does not repeat the mistake of previous manager. मैनेजर में इस तरह से कुछ बुद्धि देना जिससे पिछले जो मैनेजर्स हैं उन्होंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी या फिर जो उन्होंने गलतियां की थी, एक नया मैनेजर उस प्रकार की गलती को ना दोहराए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। In every organization, physical resources are used. The function of management is nothing but to put them to optimum use or avoid wasteful of resources. हर ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हर प्रकार के रिसोर्सेज को मैनेजर द्वारा इस तरह से इस्तेमाल करना कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हमें मदद करते हैं कि एक मैनेजर किस प्रकार से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है।
Scientific decision. A scientific decision means a balanced decision. A principle of management provide the necessary training to the manager so that they can be scientifically balanced decision. साइंटिफिक डिसीजन का मतलब है यहाँ पर कुछ आधारभूत बातों पर एक साइंटिफिक तरीके से किसी बात का सॉल्यूशन निकालना, किसी प्रॉब्लम का हल करना। एक मैनेजर को इस तरह से गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और प्रिंसिपल को ऑफ मैनेजमेंट को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है कि वो हर सिचुएशन को एक साइंटिफिक मेथड से डिसीजन ले सके और भविष्य को और अच्छा बना सके। Meeting changing environment requirement. In modern time, only such a business unit can remain alive and develop, which can keep pace with the rapidly changing environment. In every field of business activity, new techniques are emerging every day. A business who can understand the changing situation well in time can alone face competitive successfully. आज के बदलते दौर में बिजनेस के आसपास का एनवायरनमेंट जो है लगातार बदलता जा रहा है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मार्केटिंग एरिया में और ज़्यादा आती जा रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में उसी वक्त सरवाइव कर पाएगा जब वो बदलते एनवायरनमेंट में और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बदल सके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को हेल्प करता है कि किस प्रकार वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में बिजनेस में की जरूरतों को पूरा कर सके। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर एंड इनेबल देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोर एफिशिएंट मैनेजर कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल टू द टाइम। ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर की एफिशिएंसी को पहले से और ज़्यादा बढ़ाते हैं, समाज में और ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे वो कम प्राइस में, सस्ते दामों में बढ़िया क्वालिटी सोसाइटी के लोगों को या फिर सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड कर सके। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। The advantage of principle of management encourage the research to being in more important to them. The attitude of manager has molded itself in such a fashion that they are doing consciously or unconsciously sometime knew the principle of management are actually providing education and training to the manager by encashing their theoretical and practical knowledge. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समय समय पर मैनेजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोवाइड करता है, जिससे वो सामने आने वाली भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ज़्यादा अच्छे से समझ सके और उनको और ज़्यादा आसानी से टैकल कर सके। अगर हम ये सभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपना लेते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर द्वारा उसके गोल अच्छे से और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हासिल किए जा सकते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से रिसर्च किया और कंक्लूड किया और अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल्स बनाए। पर हेनरी फ्योल एक फ्रांस के इंडस्ट्रियल थे। उन्होंने अपनी बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में एक्सप्लेन किया 14 प्रिंसिपल की, और इन सभी प्रिंसिपल को 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल बोला गया। इन प्रिंसिपल को बनाते वक्त हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल एंड एलिमेंट में डिफरेंस बताया, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रूथ and established a relationship between cause and effect। प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल वो फंडामेंटल ट्रूथ हैं, वो आधारभूत बातें हैं जो किसी कार्य में और उनके द्वारा निकले गए परिणामों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, एक संबंध स्थापित करता है। दूसरी तरफ एलिमेंट के लिए बोला गया, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट टूवर्ड द फंक्शन।
और जो मैनेजमेंट के एलिमेंट है वो किस प्रकार प्रिंसिपल कार्य करते हैं इसके बारे में बताता है। इन 14 प्रिंसिपल को बनाते वक्त हेनरी फ्योल ने दो बातों का स्पेशली ध्यान रखा। पहला है लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल शुड नॉट बी लॉन्ग बट शुड बी सजेस्टिव। जो प्रिंसिपल की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए, वो कम मात्रा में होने चाहिए और सजेस्टिव होने चाहिए। दूसरा, the principle should be flexible and not rigid so that the change can be made in them in case of need। जो प्रिंसिपल बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा गया, प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से जरूरत पड़ने पर इन्हें परिवर्तन किया जा सके। ये 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए। इनको याद करने के लिए हम इस एक्रोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टाइम टू टाइम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये भी देखिएगा। डैड, यू कैन सी यूजर OIC, DAD डैड, UCUSSR OIC। ये हर लेटर किसी एक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। अगर आप इन सभी एक पूरी लाइन को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा इन सभी प्रिंसिपल को आसानी से याद करना। तो देखिए हम करते हैं। तो फर्स्ट जो डी है वो हमें डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, as far as possible, the work should be divided into small parts and each individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste rapidly so that the benefit of specialization may be achieved। डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है इसके अनुसार किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। आप ये फोटो देख रहे हैं, फोटो में जो सारे वर्कर हैं वो अलग अलग बैठे हैं, उनको सभी को एक एक काम असाइन किया गया है। इस प्रकार हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में असाइन किया जाना चाहिए और एक पर्सन को वही काम देना चाहिए और वही काम उससे लेना चाहिए जिस काम में वो स्पेशलाइजेशन है, जिससे कि हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठा सके। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जब एक ही पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो वो उस काम को करने में पहले से कम समय लगाता है, उसकी एफिशिएंसी उस काम को करने में बढ़ जाती है। इसी चीज को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं और क्या क्या वॉलेटिंग इफेक्ट हैं। कहने का मतलब अगर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे होंगे और अगर ना किया जाए तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट। एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड। इससे एडवांटेज मिलेगी, स्पेशलाइजेशन की फायदे मिलेंगे। प्रोडक्शन जो क्वालिटी है वो पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, प्रोडक्शन की स्पीड जो है वो पहले से ज़्यादा होगी और वेस्ट कम किया जाएगा रिसोर्सेज को। इसके अलावा इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जो वर्कर की एफिशिएंसी है, काम करने की स्पीड है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर डिवीजन ऑफ वर्क ना किया जाए तो क्या क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होंगे। इससे द अबव मेंशन पॉजिटिव इफेक्ट विल नॉट बी अवेलेबल। जो हमारे पॉजिटिव इफेक्ट में कहने का मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन स्पीड और वेस्टफुल रिसोर्सेज का कम होना, ये नहीं हो पाएगा। इसके अलावा वर्क एफिशिएंसी वर्कर की रिड्यूस हो जाएगी। अब जो डैड है उसमें डी देखने के बाद अब हम ए देखते हैं। ए जो है वो इस्तेमाल किया गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, authority and responsibility should go hand to hand. It means that when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the result, then
This can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. इस प्रिंसिपल के अनुसार अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलनी चाहिए। जब किसी पर्सन को किसी कार्य को करने की, किसी सबऑर्डिनेटर को किसी कार्य को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो उस सबऑर्डिनेटर को उस कार्य के अच्छी तरह से करने के लिए पर्याप्त अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। इस तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। अब हम जान लेते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉजिटिव इफेक्ट एंड वॉलेटिंग इफेक्ट। जब हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले रहेगा हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। ये हमें टारगेट को अचीव करने में मदद करता है और एक वर्कर के कॉन्फिडेंस को, एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाता है। दूसरी तरफ इसके वॉलेटिंग इफेक्ट में आएगा रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी इज गिवन टू द नीडी। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा पावर दे दी जाए तो वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपने सुना होगा मोर पावर मोर करप्ट। जरूरत से ज्यादा मात्रा में पावर होना भी गलत हो जाता है। दूसरा, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस ऑफ लेस अथॉरिटी इज गिवन। एक इंसान को डिसीजन लेने की कम पावर देने में जो प्रॉब्लम आ रहेगी, वो पर्याप्त मात्रा में डिसीजन नहीं ले पाएगा, डिसीजन अच्छा नहीं ले पाएगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा गिर जाएगी। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस पहले से गिर जाएगा और वो अच्छा अनुभव नहीं कर पाएगा, अच्छा फील नहीं कर पाएगा। अब जो डैड है उसमें सेकंड ही है, वो हमें बताता है डिसिप्लिन के बारे में। According to this principle, organization rule and employees agreement should be obeyed both the superior and subordinator, which is necessary for the successful working of the organization. इस प्रिंसिपल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन को दोनों को ही मानना जरूरी है, चाहे वो सुपीरियर है चाहे वो सबऑर्डिनेटर है। एक एम्प्लॉय की जो एग्रीमेंट हुआ है उसके रूल एक ऑर्गेनाइजेशन मानेगा और जो एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के रूल है वो एम्प्लॉय मानेगा। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए दोनों ही प्रकार के रूल और रेगुलेशन को दोनों को ही मानना जरूरी है, चाहे वो सुपीरियर है चाहे वो सबऑर्डिनेटर है। इस तरह से रूल मानने की क्रिया को ही हम कह रहे हैं डिसिप्लिन होना। अब हम जान लेते हैं क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं और वॉलेटिंग इफेक्ट हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन के। पॉजिटिव इफेक्ट में ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन लोगों में और ज्यादा अच्छी रहती है। यहाँ के लोगों की एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी पहले से ज्यादा बढ़ती है और बेटर लेबर मैनेजर रिलेशनशिप रहते हैं। लेबर में और मैनेजर में अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं। क्या होगा अगर ये डिसिप्लिन ना हो तो, जिसे हम वॉलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन खराब होती जाएगी और एफिशिएंसी जो एम्प्लॉय की वो भी गिरती चली जाएगी। हाइट इन डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर है, ऑर्डर को ना मानना, ये बढ़ता चला जाएगा। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज हैं उनका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा। इसके बाद है हमारे पास डैड यू स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। According to the principle of unity of command, a individual employee should receive order from only one superior at a time, and the employee should be answerable only to the one superior. इस प्रिंसिपल के अनुसार एक सबऑर्डिनेटर
एक टाइम में किसी एक सुपीरियर को सुनना चाहिए और उसी के लिए जवाबदेह होना चाहिए। जिस तरह से इसको एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर M का मतलब है मैनेजर और S का मतलब है सबऑर्डिनेटर, और ये जो लाइन दिखा रही है ये कमांड को दिखा रही है। यहाँ पर हमारे पास एक मैनेजर है और 3 सबऑर्डिनेटर हैं। ये एक मैनेजर 3 सबऑर्डिनेटर को ऑर्डर दे रहा है। ये सिचुएशन एक ठीक सिचुएशन है। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक सबऑर्डिनेटर एक टाइम में एक ही मैनेजर की सुने। पर अगर 2 मैनेजर और 3 सबऑर्डिनेटर पहले जैसे हों, जहां पहला मैनेजर भी सबऑर्डिनेटर को ऑर्डर दे रहा है और दूसरा मैनेजर भी सबऑर्डिनेटर को ऑर्डर दे रहा है, ये एक ठीक सिचुएशन नहीं होगी। इसमें काम करने की एफिशिएंसी घटती चली जाएगी। तो हमारे पास क्या पॉजिटिव और क्या वॉलेटिंग इफेक्ट रहेंगे यूनिटी ऑफ कमांड के, देखिए। पॉजिटिव इफेक्ट में देयर इज अ नो कंफ्यूजन सिचुएशन ऑफ द सबऑर्डिनेटर में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। एफिशिएंसी सबऑर्डिनेटर की पहले से बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी सुपीरियर की भी पहले से बढ़ जाएगी, और एटमॉस्फेयर जो है पहले से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मिलेगा। और इसके अलावा क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होंगे? वॉलेटिंग इफेक्ट में इट क्रिएट कंफ्यूजन सिचुएशन ऑफ द सबऑर्डिनेटर। अगर ये सिचुएशन ना हो तो कंफ्यूजन रहेगी सबऑर्डिनेटर में, रिड्यूस होगी एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेटर, इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर, इट confuse the injury in ego of the superior. It is difficult to fix accountability. Accountability यहाँ फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। यहाँ C का मतलब है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से समझने से पहले हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अलग अलग समझना चाहिए। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने काम को, अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर अब उसी काम को लोअर लेवल मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है। अब दूसरी तरफ सारी पावर्स जो हैं वो मैनेजमेंट अपने पास रखता है। ऑल द अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मींस ऑल द डिसीजन विल बी टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस तरह में सेंट्रलाइजेशन सिचुएशन में सारी की सारी पावर्स जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहती है और सारे डिसीजन भी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अनुसार यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जाना जरूरी है, कंप्लीटली नहीं। यहाँ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ना ही पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही यहाँ पूरी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। बजाय कि क्या होना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब हम इसके देखते हैं क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहेंगे अगर हम इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करें तो। डिक्रीज इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड में पहले से कमी आएगी, उसका काम कम हो जाएगा। बेटर एंड क्विक डिसीजंस होंगे। इंक्रीज इन इंकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेटर में इंकरेज पहले से ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते, सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन नहीं करते, तो क्या रहेगा, देखिए। unnecessary increasing workload of superior in case of centralization,
एंड अथॉरिटी इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अननेसेसरी वर्कलोड जो है सेंट्रलाइजेशन की स्थिति में टॉप लेवल पे बढ़ता चला जाएगा, और इसके उलट डिसेंट्रलाइजेशन में जो सबॉर्डिनेटर हैं वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट द रॉन्ग डिसीजन बाय सुपीरियर इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। जो सुपीरियर है वो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की सिचुएशन में गलत डिसीजन भी ले सकता है। अब हमारे पास यहाँ हम देखें तो हमारे पास जो 6th है वो रहेगा हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, unity of direction means that there should be one head and one plan for the group of activity having same objective। सेम ऑब्जेक्टिव जो हैं, जिन ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के सेम ऑब्जेक्टिव हैं, उनका वन हेड और वन प्लान होना चाहिए और एक ही तरफ होना चाहिए। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग अलग प्रकार की साउंड्स क्रिएट करते हैं, पर इन सभी साउंड्स को इकट्ठा करने पर ही हमें एक अल्टीमेट एक सॉन्ग मिलता है। तो अलग अलग बेशक से वो इंस्ट्रूमेंट है, बट ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उन सभी का, उनका सभी का डायरेक्शन एक अच्छा साउंड, एक अच्छा म्यूजिक देना है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटी की जा रही है, उनका सभी का टारगेट एक होना चाहिए, और हर काम के लिए जो अगर अलग अलग काम में डिवाइड किया गया है, अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है, तो एक पर्सन हर यूनिट के लिए होना चाहिए। जिस तरह से XYZ कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग हेड हैं, अगर इसे अलग अलग डिवीजन यूज करती है तो यहाँ अलग अलग हर डिवीजन का एक अलग अलग हेड है। देख लेते हैं इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट में एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मैनेजर्स एसोसिएशन विद द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मिलेगी, इंक्रीज होगा एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करना आसान होता जाएगा। इट हेल्प कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि सभी एक्टिविटी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। इसके अलावा तो क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होंगे। एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट ऑब्टेन, हम स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और डिफिकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन एक्टिविटीज। यूजर में फर्स्ट एस जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee. जिस तरह से एक टीम का जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के सेंचुरी बनाने से ज़्यादा, इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ज़्यादा जरूरी है किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट से। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल हैं, सबऑर्डिनेटर्स हैं, उनको हम प्रायोरिटी ना देकर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हमारे क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। इससे ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, इंसानियत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसमें सभी का फायदा होना चाहिए। एवरीबडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, हर किसी का प्रॉफिट से ही कंपनी का प्रॉफिट है और कंपनी के प्रॉफिट से ही हर किसी का प्रॉफिट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर ऑब्टेन्ड, इससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। आपने मसलो नीड हायरार्की थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इस तरह से सेट किया जाता है जिससे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों ही अटेन हो जाए।
इसके वॉलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे? देखिए, ह्यूमैनिटी जो है वो वॉलेट हो जाएगी। इंक्रीज इन जेलेसी, लोग एक दूसरे को जेलिस महसूस करेंगे। हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को हासिल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लैक इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में। यूजर में सेकंड एस जो है वो स्टैंड करता है स्केलर चेन के लिए। तो स्केलर चेन क्या है? देखिए, स्केलर चेन, स्केलर चेन refer to the formal line of authority and communication। authority and communication का मतलब है, authority का मतलब है सबऑर्डिनेटर को दी जाने वाली डिसीजनिंग पावर, एंड कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करना। विच मूव फ्रॉम टॉप टू लोअर रैंक इन ए स्ट्रेट लाइन। स्केलर चेन के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी और कम्युनिकेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा में जाते हैं, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से सबऑर्डिनेटर की तरफ। इसको मान लीजिए हमारे पास ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ABCDEFG, ये सारे हमारे टॉप टू लोअर हैं। अब यहाँ पर जो अथॉरिटी मूव करेगी इस सीधी रेखा की तरह ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी। इसके अलावा हेनरी फ्योल के ओपिनियन में, हेनरी फ्योल, द चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली मैनर, ये चेन को स्ट्रिक्टली मैनर से यानी सख्ती रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, लागू करना चाहिए। इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वाइस वर्सा। जो कम्युनिकेशन है वो मूव करेगा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। द इम्पोर्टेंस कंडीशन हेयर, नो स्टेप शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, और किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से ये लाल रेखा हमें बताती है कि हमें ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर एफ जो है वो बात करना चाहता है, इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है सी को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्केलर चेन को डबल स्केलर चेन से फ्यूल एक्सप्लेन करते हैं, इसी को फ्यूल लेडर बोला गया है। इसके अनुसार अगर एफ किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पी से कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है तो एफ को इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ई, टी, सी और ए से होते हुए एल, एम, एन और ओ तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी। ऐसा करने से क्या यूटिलिटी रहेगी? ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फास्टर। इस तरह से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ज़्यादा क्लियर होने से क्या होगा, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा आसानी से और किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा जल्दी से सॉल्व किया जा पाएगा। पर इन द केस ऑफ इमरजेंसी, एफ और पी जो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गैंग प्लान के सहारे कर सकते हैं। तो गैंग प्लान क्या है? गैंग प्लान इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिले ना हो, उससे कोई और नुकसान ना हो। एफ पी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है, बट इसके लिए उन्हें अपने इमीडिएट सुपीरियर जैसे एफ के लिए ई और पी के लिए ओ है उनसे परमिशन लेनी होगी। अब हम देख लेते हैं क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में फ्लो ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो एक ही तरह से होगा, एक फ्लो में होगा। इसके अलावा बेटर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट होने से रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होगा। क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम,
सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का जल्दी हो पाएगा। इसके अलावा क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होंगे, देखते हैं। वॉलेटिंग इफेक्ट में डिसऑर्डर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसका जो फ्लो होगा वो डिसऑर्डर होगा। इसके अलावा बिटर मैंने कड़वा, इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ क्लोज सुपीरियर, जो क्लोज सुपीरियर है उसको इग्नोर किया जा रहा है, इस वजह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेटर के रिलेशन पहले से कड़वे हो जाएंगे। इंक्रीज ऑन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम, इंफॉर्मेशन सही समय पर ना पहुंचने से प्रॉब्लम पहले से ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अब यूजर में आर का मतलब है यहाँ पर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। Remuneration to employee. According to this principle, the employees should be paid fair remuneration, which should give them at least a reasonable standard of living. इस प्रिंसिपल के अनुसार रेमुनरेशन जो है एम्प्लॉय को पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से अच्छा हो। इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, देखिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होंगे उनमें इंकरेज ज्यादा रहेगा और उनकी सेटिस्फेक्शन पहले से ज्यादा होगी। डेवलपमेंट इन स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में पहले से ज्यादा स्पिरिट और डेडिकेशन होगी। इसके अलावा डिक्लाइन द लेबर टर्नओवर रेशियो, मजदूर जो है, वर्कर जो है नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको अच्छा रेमुनरेशन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होंगे, डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन पहले से कम होता जाएगा। इनकरेज है वो डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, वर्कर जो है डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, चोरी करना बेईमानी करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेशियो, जो अच्छे वर्कर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। OIC में ओ का यहाँ स्थान जो लिया गया है वो लिया है ऑर्डर ने। According to this principle, a right person should be at right place and at a right time. According to Fayol, every enterprise should have two different order: material order for physical resources and social order for human resources. Keeping the physical resources in order to mean that a proper place for everything and everything in the right place. हर ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं, मेटीरियल और उन रिसोर्सेज को एक ऑर्डर में रखना जरूरी है। जो मेटीरियल ऑर्डर है और सोशल ऑर्डर है। मेटीरियल ऑर्डर फिजिकल थिंग्स के लिए है और सोशल ऑर्डर इंसानों के लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में बोला गया है, हर चीज का एक सही स्थान होना चाहिए और हर चीज अपने स्थान पर होनी चाहिए। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बोला गया है, ए प्लेस ऑफ एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस, हर इंसान का एक प्लेस होना चाहिए और हर इंसान अपने स्थान पर होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास देखते हैं क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में देखें, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा। बेटर नो लॉस ऑफ टाइम टू ट्रैक द रिसोर्सेज इन नीड ऑफ टाइम, जब हमें हमारे वर्कर की जरूरत है उसे ट्रैक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस पर्सन को ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जहां पर उसको अपॉइंट किया गया वहीं पर हम उसे ढूंढ सकते हैं। और बेटर डिसिप्लिन, इससे डिसिप्लिन और ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम नहीं करते तो क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होंगे। वॉलेटिंग इफेक्ट में मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। और हाइट ऑफ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर पहले से ज्यादा होगा।
यहाँ आई का मतलब है इनिशिएटिव। Initiative. According to this principle, employees in the organization must be given an opportunity in making an executive plan. इस प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय को कम से कम एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। इससे होगा क्या, इसके क्या बेनिफिट होंगे? अगर बेनिफिट में देखें तो इंक्रीज इन थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, जो कोऑपरेशन है एम्प्लॉय का वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अलावा अटैचमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन से और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो डिक्लाइन इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय, विचार करने की शक्ति जो है एम्प्लॉय की वो कम होती जाएगी। एटमोसफेयर नो कोऑपरेशन, एक दूसरे से कोऑपरेशन ना करने का एटमोसफेयर क्रिएट हो जाएगा। और डिक्लाइन द एम्प्लॉयज अटैचमेंट इन द कंपनी, और कंपनी के साथ अटैचमेंट जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एस। एस यहां पर इस्तेमाल किया गया है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। Stability of personnel. According to this principle, there should be a stability of the tenure of the employee so that work continuously efficiently. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनका टेन्योर लंबा होना चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए। इससे होगा क्या, हमें बार बार ट्रेनिंग का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को जानने में एक एम्प्लॉय को जो टाइम लगता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट में देखें तो हमारे पास इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, रेपुटेशन जो है कंपनी की ज़्यादा अच्छी होगी, और इसके अलावा जो स्किल है वर्कर का वो पहले से बढ़ता चला जाएगा। और क्या क्या नुकसान होंगे अगर ऐसा नहीं करते? तो एटमोसफियर है डिसबिलीफ ऑफ द एम्प्लॉय, एक दूसरे पर विश्वास करने की शक्ति जो है वो कम होती जाएगी। और डिक्लाइन इन रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन कम होती जाएगी। इसके अलावा गुड वर्कर लीव कंपनी, अच्छे कर्मचारी कंपनी को छोड़कर जाते रहेंगे। और हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, और ट्रेनिंग पर और रिक्रूटमेंट पर किया जाने वाला खर्चा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। देखते हैं एस ई। ई स्टैंड फॉर equity. According to this principle, the manager should treat their subordinator as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their worker. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेटर को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जिससे उनमें फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग आए। इससे क्या क्या फायदा होगा? देखिए, द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ डिवोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एम्प्लॉयज का डिवोशन पहले से ज़्यादा हो जाएगा। स्किल्ड एम्प्लॉय ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल, जो ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉय हैं वो अपने स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में ट्राई करेंगे, और अनस्किल्ड एम्प्लॉय अचीव करने की कोशिश करेंगे स्किल को। बट अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या क्या होगा? देखिए, क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन फॉर द स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर में डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी। अगर यहाँ पर इक्विटी, एक जैसा सभी को ट्रीट नहीं किया जाता, अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता, तो स्किल्ड वर्कर में डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी। स्किल्ड वर्कर लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति स्किल्ड वर्कर का कॉन्फिडेंस पहले से कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी। इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर की केयरलेसनेस पहले से ज्यादा हो जाएगी। जो लास्ट ई है वो स्टैंड करता है स्पीड द कर्व। इस तरह से हम आसानी से
दैट यूसी यूजर OIC से पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। Spirit the cop. Spirit the cop. As per this principle, a manager should continuously make effort to develop a team spirit among the subordinates. एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को लगातार काम करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेटर में टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए। टू डू दिस he she should use word we instead of I during the conversation with subordinator. यहाँ जो आई है वो अपने आप को ईगो को दर्शाता है और वी जो है अपने आप का अपनापन के लिए दिखाता है। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को जब सबॉर्डिनेटर से कन्वर्सेशन कर रहा है वो वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर शुड ऑलवेज से वी इंस्टेड ऑफ आई। सो इसके क्या बेनिफिट होंगे? बेनिफिट में अगर देखें पॉजिटिव इफेक्ट में, तो मोटिवेशन जो है वो टीम स्पिरिट ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आसानी से प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा स्वीट रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसके क्या क्या नेगेटिव असर होंगे? तो नेगेटिव असर यानी वॉलेटिंग इफेक्ट, अगर ये ऐसा नहीं करते तो इसमें किल टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगी, डिफिकल्टी होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और बिटरनेस, एक रिलेशन में कड़वापन आता। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट व्हाट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड एट व्हाट टाइम, कौन सा प्रिंसिपल किस समय में, इन व्हाट सिचुएशन किस स्थिति में, एंड व्हाट डिग्री किस मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा, इट ऑल डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ मैनेजर। ये एक मैनेजर की एक्सपीरियंस पर, उसकी एफिशिएंसी पर और डिसीजन लेने की पावर पर डिपेंड करता है। Thus, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल एडवोकेट बाय फ्योल हैज एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए हैं उनमें एक एलिमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। आप जितनी मात्रा में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी मात्रा में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर YouTube चैनल।